Hello and Assalamu alaikum dear viewers. I welcome you in the another session, another video of School Leadership Academy SCERT-JK. Today in capacity of School Leadership Academy, we are here in District Kupwara, Zone Mawar, and we have with us a reputed academician, Zonal Education Officer Mawar, Muhammad Maqbool Lone Sahab. Sir, I welcome you to our ongoing series on best practices. Thank you very much. So in the beginning, I would like to ask you about yourself first, then about your time management and the education background. I am Muhammad Maqbool Lone. I am from Budernabal, Tahsil Kralapora district, Kupwara. Budernabal is a far-flung area situated on actual line of control. Sir, I have got my basic education from Boys Middle School, Budernabal, and I have passed my 8th standard examination in 1987. After that, I got admission in 9th class at Boys High School, Taratapora, Zone Vilgam. Presently, that institution is famous in the name of Higher Secondary School, Taratapora. I passed my 9th class and 10th class from the then High School, Taratapora, Zone Vilgam. And I passed my 11th and 12th class from Higher Secondary School, Vilgam, Zone Mawar. And then I got admission in BSc from Government Degree College, Sopore, and I completed my BSc in 1995. In the meanwhile, I got appointed as teacher in 1996. After joining my service as teacher in Government Middle School, Budernabal, I served there for a period of 2 years. I was deputed to Government College of Education, Srinagar, for pursuing my B.Ed course. After completion of my B.Ed course, I was once again posted in Boys Middle School, Budernabal. I served there for a period of more than 10 years. After that, I promoted as master's grade and I was posted in Government UPS, Manzapatra Zone, Kralapora. In the year 2011, April, I was elevated as headmaster of high school, and I was posted in Government High School, Vampora District, Kwalagam of South area. And after that, I got transferred from Kwalagam and I was posted in High School Reddy Chokibal of Zone Kralapora District, Kupwara. And after that, I got transferred from Reddy Chokibal, Kupwara to Boys High School, Lilam Vilgam. I served there for more than 7 years, and after that, I got elevated as zonal in charge zonal education officer from High School Lilam and was posted as in charge zonal education officer Mawar on 20th April 2020, sir. Sir, almost you have spent most of your time here in this zone, I believe. Kralapora, yes sir. And this area specifically. जी sir. आप यहाँ कब ट्रांसफ़र हुई आपकी? उसके बाद यहाँ पे आपने क्या नई अचीवमेंट्स ली, क्या असाइनमेंट्स आपने लिए और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए इस जोन में, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, I joined as zonal education officer Zone Mawar on 21st of April 2020. Sir, COVID was at peak. जो ही सर मैंने ज्वाइन किया, schools were shut, schools were closed, offices were working on scheduled basis. There were so many challenges for me, how I will work as a successful administrator, as a successful officer. Online mode took so many meetings in the form of virtual. A lot of time. Exactly, sir. Virtual mode with the head of the institutions and my ministerial staff. There were so many challenges, like how I will provide good quality of education to my students, how the institutions will run online mode. These were so many challenges, but there were as well the abandoned buildings as well. There were the different types of difficulties in the zone. Rather, I mean to say, परेशान में था कि मैं इस अपनी जोन में किस तरह से इन मामलात के साथ इनका चैलेंज लेते हुए मैं कैसे अपने आप को एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर साबित करूं। बट फॉर्चुनेटली आई मस्ट से मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने हर प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स का, हेड मास्टर्स ऑफ हाई स्कूल्स का, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिडिल स्कूल्स, अपर प्राइमरी स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स, स्पेशली माई मिनिस्ट्रियल स्टाफ. देयर इज़ ए हेड असिस्टेंट इन माई जोन zonal office. Even he is like my elder brother. He properly from time to time cooperated me where we have to
what are the strategies which we have to take at an earliest, so that our zone will become a successful zone and will top in district of Kupwara. Fortunately, there were so many difficulties like distribution of dry rice, like what do I say, this DBT mode of ingredient charges, scholarship, etc. And lastly, I must say I am very much thankful to my subordinate staff. उनके कॉपरेशन को मद्देनज़र रख कर मैं तकरीबन मैं ये सर कह सकता हूँ 90%, अगर 190% में कामयाब हो चुका हूँ। आज की डेट में मेरे लिए, मेरे जोन में, मेरे हिसाब से मेरे पास जो नंबर लगा हुआ है, कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो जोन में सेटल जिसमें मुझे ज़्यादा देखना है। मेरे कहने का मतलब है कि आज के हमारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, जिनकी वजह से फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें बहुत सारी गाइडेंस का इशारा मिला, गाइडेंसेस सर्कुलेट हो गए। और मुझे कहना चाहिए कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आई वेरी मच थैंकफुल टू माई डिस्ट्रिक्ट बॉस फानी सर and the deputy CEO Bhatt Saab, DEPO sir, those officers who have guided me from time to time in order to run the zone in a best way. In the focus, the main theme, the objective of all these meetings, their guidance was to how to give a proper education to the downtrodden students of the poor families like Lahikot, like Monabal, like Londa, like Navgam, like Shanu, like Kalamabad, like Maradgam, like Dornak, etc. Sir, my zone is a big zone as per the topography is concerned. There are 3 Tehsildars posted in the area. There are 3 SHOs working in the area. There are 3 block development officers working in the area. And the whole this area education sector, there is only a single ZDO. I am very much thankful to my teachers like Ishfaq Saab Tirmizi and Arshad Mahideen Saab and others who delivered their classes via radio, via teleconference, etc. सर, पहले मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ इस सरजमीन पे, एजुकेशनल जोन महावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा. Myself Sayyid Ishfaq Tirmizi, I am from Kunil Qaziabad, and now I am posted at Boys Higher Secondary School Ashipura. तो जहाँ तक रेडियो क्लास और टेली क्लास का ताल्लुक़ है, चूँकि पिछले 2 साल में हमने देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए, तो उन चैलेंजेस को यानी निभाने के लिए, उन चैलेंजेस को कूप अप करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारी कोशिश की. पूरी दुनिया के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में भी और हमारे कश्मीर में भी और हमारे जोन में भी ऑनलाइन का सहारा लिया गया. ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, कम्युनिटी क्लासेस शुरू हो गए, ताकि बच्चों की जो ये गैप है इसको फिलअप किया जाए. लेकिन अब चैलेंज था, एक मेजर चैलेंज था कि उन बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या जो उस एरिया में रहते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल टावर्स नहीं है. तो इस सिलसिले में हमारे उस वक्त के डायरेक्टर साहब यूनुस मलिक साहब, डॉक्टर यूनुस मलिक साहब ने, और हमारे नोडल अफसर जावेद किरमानी साहब ने, और पूरी SCRT टीम SLA जिसमें उसका खासा एक रोल रहा स्कूल लीडरशिप एकेडमी का, तो उन्होंने बाहमी तौर पर एक सेटअप उठाया. और सेटअप ये था कि बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए, और यानी उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक सेटअप लिया कि हम रेडियो और TV के ज़रिए बच्चों तक पहुंचेंगे. तो जहाँ तक रेडियो का सवाल है और टेली क्लास का सवाल है, आई वॉज फॉर्चुनेटली selected for the radio classes and for the tele classes from this far-flung area, from this far-flung zone Mahawar. तो इस सिलसिले में मैंने मोर दैन 100 क्लासेस रेडियो पर दिए और मोर दैन 80 क्लासेस जो है मेरे नशर हुए DD कशर पर. सर बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि यहाँ पे जब आप ट्रांसफ़र हुए और कितनी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी, और स्पेसिफिकली ड्यूरिंग कोविड-19 सर जो आपने फेस किया यहाँ पे, और उसके बाद आपने किस तरह से उन चीज़ों को जो हैंडल किया, बहुत ही
टेक्निकली आपने हैंडल किया है हर चीज़ को। जी सर। जैसे कि हम भी आज यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया आपके जोन के अंदर, और हमें भी पता चला कि आप यहाँ पे एक बड़े ही रेपुटेड जोनल एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और आपने बहुत सारा काम किया भी है पीछे। और स्पेशली जब ये कोविड-19 का टफ टाइम आ गया था, जब सब कुछ एकदम से ऑनलाइन हो गया और रातों रात हमें जो ऑफलाइन क्लासेस थी उनको ऑनलाइन मोड पे लेके गए, और हमारे टीचर्स अभी इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि एकदम से वो टेक्निकली जो है वो हमें सब कुछ चेंज करना पड़ा। तो आपने उस सिचुएशन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया है, और जैसे कि आपने कहा कि आपके यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स जो है उन्होंने आपका पूरा सपोर्ट किया है इस काम में, और आपने ये सारी अचीवमेंट हासिल की है। कि एक ऐसी मैसेज आप पहुँचाना चाहते हैं कोई अपने HOIs जो आपके हैं, या आपके टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है आपकी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर अपनी तरफ से मैसेज देने से पहले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने इससे पहले में एक क्वेश्चन किया कि आपने किस तरह से ऑनलाइन का ये ऑनलाइन सडनली जब ये ऐसा हो गया, सडन आउट ऑफ सडन हो गया, तो मैंने एक स्ट्रेटजी डिवाइस की। स्ट्रेटजी किस तरह से मैंने प्रायोरिटाइज किया अपने सेक्शन को, अपने जोन के एरियाज को। से सर गाजियाबाद साइड मेरा एक एरिया है, लहीकोट एक साइड है, हरेल एरिया सर, इसी तरह नवगांव वगैरह वो रिशवारी के नाम से बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है सर। टीचर्स को टेलीफोनिकली जूम मीटिंग के ज़रिए मैंने सर उनके साथ बात की और प्रायोरिटाइजेशन की। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई टीचर्स, टू माई PRIs, टू माई पेरेंट्स एज वेल, जिन्होंने मेरे टीचर्स का एक अच्छा खासा साथ दिया। टीचर्स को टीचर्स में प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद मेरे टीचर्स, आई एम वेरी मच वंस अगेन आई मस्ट से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई टीचर्स, जो अपनी गाड़ी लेके, अपने बैगों में लेके उन्होंने इस बड़े टफ सेशन में ड्राई राइस का उन बच्चों के घर तक पहुंचा दिया। इन द मीन वाइल ड्राई राइस के साथ साथ अपने एतबार से उनके पास एक हैंडमेड वो कंप्यूटराइज्ड हमने वहाँ से SLA स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SLA का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर। उन्होंने ऑनलाइन तरह से वो मटेरियल भेजा, और इस मटेरियल को हमने जोनल हेडक्वार्टर्स पर प्रिंट आउट करके अपने बच्चों तक पहुँचा दिया। और ये बच्चे जो है बड़े गरीब सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, बट सिटल देन उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। मैंने सर मस्जिद के इमाम साहिबान के साथ बात की, मैंने PRIs लोगों के साथ बात की। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई which I called as the Irfan Panditpuri साहब, like DDC काउंसिल मेंबर इन द मील वेयर खुर्शीद अहमद डार साहब हमारे हैं, बशीर अहमद साहब हमारे यहाँ पे हैं सर, ताहिर आफ्ताब साहब BDC मेंबर हैं सर। इन द मीन वाइल उनके डाउन द लेग जितने भी हमारे पास हैं सरपंच सारे लोग, उन्होंने मेरे साथ हाथ मिला के, उन्होंने मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के मुझे कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के बाद तभी मैं कामयाब हो गया, जब वो उन्होंने मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर। और फॉर्चुनेटली मैं ये कहता हूँ आई एम सेटिस्फाइड दैट अपने इस पीरियड में, अपने इस टेन्योर में मेरा दिल सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन ये जोनल एजुकेशन ऑफिस आई मीन टू से ये ऑफिसर्स वगैरह ये कुर्सियाँ रहने वाली चीज़ें है नहीं, इनको ऑन द डे ऑफ जजमेंट हमने जवाब देना ही देना है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये बातें हमने जूम मीटिंग्स के ज़रिए की। बट आई एम रियली सेटिस्फाइड कि मैंने अपने टेन्योर में in collaboration with my teachers, in collaboration with the PRIs, in collaboration with the society, civil society, in collaboration with the PRIs, in collaboration with the imam sahibs of the different mosques, उन्होंने मेरे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के बाद हम किसी हद तक अगर इफ नॉट 100 बट +90 हम कामयाब हो गए अपने मिशन में सर। जैसा आपने फरमाया कि कोविड-19 के अंदर कितने मुख्तलिफ तरीके आपने अपनाए और अपनी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उन तक आप कैसे पहुँचे। जी सर। बहुत सारे लोगों की उसमें आपने जिक्र किया और उनकी मदद लेकर, अपने टीचर्स साहिबान की मदद लेकर आप उनके घरों तक पहुँचे, या मटीरियल आपको मिला है SCERT से वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपना जो है फ़र्ज़ जो है वो अंजाम दिया। जी सर। सर आखिर में मैं वही आपसे एक मैसेज की दरख्वास्त करता हूं जो आप अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस को देना चाहेंगे, टीचर्स को देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, या हमारी लोकल सिविल सोसाइटी कम्युनिटी जो है उनको देना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मोतबाना अपील होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी
कि जिस तरह से अभी तक उन्होंने फ्रॉम टाइम हमें गाइड किया, तो उनकी गाइडेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनकी गाइडेंस को हम मिनो अन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इन द मीन वाइल हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपनी जिन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें वक्त पर इनकरेज भी किया और गाइडेंस और गाइडलाइंस के ज़रिए हमें एम्पावर किया कि आपने किस तरह से अपने इस सिस्टम को चलाना है। इन द मीन वाइल अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, अपने टीचर्स से मेरी ये मुद्दबाना अपील होगी कि हमने ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारा आने वाला कल है। दिस इज़ और अपने टीचर्स, अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से मेरी मुद्दबाना अपील है, मेरी गुजारिश है कि हमने इनको ये समझना है कि ये हमारा आने वाला कल है, ये बच्चे हमारे आने, ये हमारा फ्यूचर है। इन बच्चों को कल मेरी कुर्सी पर बहैसियत जोनल एजुकेशन ऑफिसर बैठना है। इन बच्चों को कल एक डॉक्टर की कुर्सी पकड़नी है। इन बच्चों को कल बहैसियत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, बहैसियत चीफ एजुकेशन ऑफिसर बैठना है। मेरी एक मिसाल है, मैं अपने उस्ताद साहिबान से ये कहना चाहूँगा, ज़रूर हम इंस्टीट्यूशन में कुछ आवर्स के लिए रहते हैं, जैसे 6 आवर्स के लिए थे, बट रेस्ट जो हमारे पास टाइम रहता है हम अपने घर में रहते हैं। अपने घर में अपनी खेती बाड़ी को देख के, अपने बागात को देख के, अपनी प्रॉपर्टी को देख के, जब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब सेशन ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद जब हम अपनी इनकम को देखते हैं, तो हमारा बाग जिसमें हम दवाई भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मजदूर भी लगाते हैं, उस हमारे बाग में इतना प्रोडक्शन हमारे पास नहीं होता है। बस ये जोनल एजुकेशन ऑफिसर, जब मैं अपनी सैलरी को देखता हूँ, ये मेरी सैलरी, इसमें ना मुझे दवाई छिड़कनी पड़ती है, ना मुझे और कुछ करना पड़ता है, या मेरा टीचर या मेरा हेड कलर या मेरा कोई पियान या मेरा और कोई टीचिंग से या नॉन टीचिंग से लेकर, ये हमारे पास एक अच्छी खासी इनकम होती है। जिस इनकम को मद्देनज़र रखकर मैं एक वाइट कॉलर बंदा बनता हूँ, या मेरा बच्चा एक अच्छी खासी ड्रेस पहन के निकलता है, चलता है, तो मैं ये मेरी तरफ से मैसेज है, अपने आप को पहले खौफ खुदा मद्देनज़र रख के, द डे ऑफ जजमेंट मद्देनज़र रख के, और ख़ासकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को मद्देनज़र रख कर हमने ये सोचना है कि ये हमारा पेशा जो है ये एक बड़ा रेस्पेक्टेबल पेशा है। तो इस चीज़ को आप बड़ा सीरियस लेंगे। सीरियस लेने के बाद हमने इन बच्चों के साथ उस तरह से बैठना है जैसे कि हमने अपने बचपन को लाना है। उनके बच्चे, हमने अपने ड्रेस का ख्याल नहीं करना है, हमने बच्चों के साथ टेबल पर बैठना है, मैटिंग पे बैठना है। फॉर्चुनेटली आज की गवर्नमेंट का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आज की डेट में हमारे इंस्टीट्यूशन में वो वाली मैटिंग नहीं हुआ करती थी जो मेरे ज़माने में थी। आज जब भी जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन में सर आप जाएंगे, ICT लैब्स को देखेंगे, बड़ी अच्छी खासी मैटिंग को देखेंगे, वाइट पेंट आप देखोगे, हमारे वाशरूम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, हमारा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सब कुछ करना, उसका संभालना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल हमारा उसको ओन करना है। जैसे कि रिसेंटली आज हमारे पास एक नारा है, माई प्राइड, माई इंस्टीट्यूशन, माई स्कूल। इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद तब भी हम ये उम्मीद रखेंगे ये हमारा फ्यूचर एक बेहतरीन फ्यूचर बनने वाला है। एक मैसेज मेरी रहेगी प्यारे लोगों से, DDCs, BDCs, पंच, सारे वो लोकल गवर्नमेंट है। सर अभी तक हमें ये कंसेप्ट नहीं था कि 3 टायर गवर्नमेंट क्या होती है। आज हमें पता चला 3 टायर गवर्नमेंट क्या है। इसमें सरपंच का काम क्या है, पंच का काम क्या है, BDC का काम क्या है, DDC का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो होती है। क्योंकि हमने अब आज की डेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट उनके साथ एक अच्छा खासा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है, एक रिलेशन रखना है। उस रिलेशन के साथ जब हमारा एक अच्छा, हमने अपनी ईगो को जो हम लेते हैं कि न मैं पैंट शर्ट लगा के कोई बला बन गया, इससे अन्ना जो हमारे इस अन्ना को एक तरफ छोड़ के हमने सिविल सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इस सोसाइटी को, अपने इन एरियाज़ को, अपनी इन फार फ्लंग एरियाज़ को, अपने इन बच्चों के साथ हमने ये डेडिकेशन, हमने बड़ी डेडिकेशन के साथ ये एक वादा करना है कि हमने अपनी गवर्नमेंट को, अपनी कौम को, अपने नेशन को, अपने कंट्री को कुछ अच्छा खासा प्रोडक्ट देना ही देना है। सर बहुत खूब, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। और हम इसलिए ये सारी चीज़ें जो है एक वीडियोग्राफी के ज़रिए से दूसरे ऑफिसर्स तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे, ताकि उनमें भी ये जो आप में वलवला है काम करने का, और जो नए नए तरीके आपने अपनाए यहाँ पे इस जोन में, इस जोन को एक यूनिक जोन बनाने के लिए, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप ऑफिसर्स इन जोन्स में करते हैं वो हम सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या दूसरे ऑफिसर्स तक, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन के ज़रिए से उनका जोन या उनका एरिया या उनका स्कूल जो है वो भी इसी तरह डेवलप हो जाए जैसे महावर के जोन में स्कूल्स आपने डेवलप किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया,
आप हमारी यूट्यूब चैनल पे आए और आपने अपनी सारी एक्सपीरियंस जो जोन मावर की है वो हमसे शेयर की। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बोलूं कि मैं कौन सी ज़बान लाऊं कि जिस ज़बान से मैं अपनी गवर्नमेंट का, अपनी SLA टीम का, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग्स के ऑफिसर्स का, या आप जो आज की डेट में हमारे पास आ गए, हमारी इंटरेक्शन हो गई, मुझे भी आपका एहसान रहेगा। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि आइंदा भी हम ये प्रोग्राम एक्सपेक्ट रखते हैं, ताकि आपके ही कहने से, आपके ही इन प्रोग्राम्स की वजह से हम इन झाड़ियों से, इन जंगलों से बाहर निकल कर हमारे लिए भी एक आईना आप दिखाएंगे, जिस आईने को मद्देनजर रखकर किसी दुनिया तक पहुंचाने की हम भी अपनी तरफ से कोशिश कहते हैं कि जैसे अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं सर। थैंक यू वेरी मच। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।